Good morning, my dear students. We were discuss we are discussing the chapter agriculture. In this chapter, we have discussed the different concept of this chapter, like the different types of the farming, cropping pattern in India, and mainly at present time we are doing the study of different crops, how they are grown in different geographical conditions. In this category, we have discussed about the food crop that consists of the cereal. Second, we have also discussed the food crop but known than the cereals or grains. And third, we are discussing the non-food crops. In the non-food crop, we have already discussed about the rubber. So my dear student, I have already told you about the production or geographical conditions to produce the rubber. Today, we are going to discuss about the fiber crops. So today we are going to discuss about the fiber crops. Fiber crops, as you are aware, cotton, jute, hemp, and natural silk are four major fiber crops that are grown in India. The first three are derived from the crops. इनमें से जो पहली तीन है जैसे कि कॉटन, जूट और हेम्प, ये आपकी क्रॉप से ग्रो की जाती है in the soil, but natural silk is obtained from the cocoons of silkworms fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as सेरिकल्चर. जैसा कि आपको ज्ञात है कि अलग अलग तरह की आपकी एग्रीकल्चर होती है, तो उसमें जो है एक टाइप आपका सेरिकल्चर भी होता है. सेरिकल्चर में हम सिल्क वॉर्म को जो है आपका जो है पालते हैं, उसको जो है सिल्क वॉर्म की हम खेती जो है वो करते हैं. तो फाइबर क्रॉप में आपकी दो मेन क्रॉप्स है बेटा. द वेरी फर्स्ट इज कॉटन एंड सेकंड इज जूट. First of all, we are going to discuss about the cotton. Cotton, India is believed to be the original home of the cotton plant. ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया है ये आपका जो है ओरिजिनल होम है, यानी कि कॉटन जो है सबसे पहले जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी जो है कल्टीवेट की गई थी. In the sixth standard, we discuss a chapter in the earliest cities. In the earliest cities, we discuss about the Harappan civilization. And in Harappan civilization, there was a site, Mehergarh. In the Mehergarh, the cotton was first cultivated approximately 7000 BC. So that's why India is known as the original home of the cotton plant. So cotton is one of the main raw material for cotton textile industries. India is the third largest producer of cotton in the world. Now, geographical condition required for this crop. So the very first is cotton grow well in drier part of the black cotton soil of Deccan Plateau. सबसे ज्यादा जो आपकी कॉटन है ये आपकी दक्कन प्लेट यानी कि जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी क्रॉप कॉटन जो है क्रॉप जो है ग्रोन की जाती है. एंड दैट्स व्हाई most of the cotton textile industries are also located in this region. We will discuss in the chapter number 6 manufacturing industry about the cotton textile industry. Second is it require high temperature, light rainfall और irrigation. इसको जो है ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कम रेनफॉल चाहिए होती है और इरिगेशन की सहायता से भी आप इसको जो है कल्टीवेट कर सकते हैं. मेन इंपॉर्टेंट थिंग regarding this crop is the 210 frost free days. तकरीबन जो है 210 दिन जो है फ्रोस्ट फ्री डेज जो है आपके होने चाहिए. एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ के लिए जो है आपकी जो है ब्राइट सनशाइन जो है आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो है इसके लिए जो है हाई टेम्परेचर की नीड आपकी जो है होती है. तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपकी जो है कॉटन को चाहिए होता है. एंड अप्रोक्सीमेटली द रेन रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रॉप इज 80 to 120 centimeter. It is a creep crop and requires 6 to 8 months to mature. So these are the different geographical conditions. What are the areas of cultivation?
मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा एंड यूपी। इन दी स्टेट मेनली आवर कॉटन इज ग्रोन, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉटन है वो आपकी महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन में, आपका ब्लैक सोइल रीजन में आपका होती है। और महाराष्ट्र और गुजरात का जो रीजन है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉटन बेल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन। So this is the brief introduction of the cotton. So in the cotton, the very first important point, India is the original home of the cotton plant. Second important point, India is the third largest producer of the cotton production. Third, geographical condition में it well grown in the Deccan Plateau region where the black soil is found. Fourth, it requires high temperature, low rainfall, irrigation and 210 frost-free days. You have to keep this point in your mind, 210 frost-free days, and it requires the time 6 to 8 months to mature. And the major state, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and UP. Next is our jute. As you are aware, jute, it is also known as the golden fiber. So jute is used to making gunny bag, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Means अलग अलग जूटों की जो चीजें हैं वो आपकी जो है जूट से बनाई जाती है. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packing material, particularly the नायलॉन. यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर जो आपके आए हैं जैसे कि लाइनॉन वगैरह है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से मार्केट में जो है इसकी वैल्यू जो है कम हो रही है. लेकिन गवर्नमेंट ने आपका जो है एक पॉलिसी बनाई है जूट से रिलेटेड, दैट वी विल डिस्कस इन दी 6th सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो हाउ द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग दी जूट इंडस्ट्री, वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर. अभी मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं उसके बारे में. तो सिंथेटिक फाइबर सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है आपकी जो है जूट इंडस्ट्री को देता है. Now condition required for this crop is jute grow well on well drained fertile soil in the flood plain where soil are renewed every year. जो जूट है आपका, जूट जो है आपका जो है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, जहां पे पानी की निकासी का अच्छा सिस्टम रहता है और अच्छा पानी जहां पे मिलता है वहां पे ये आपका होता है. जैसे कि आपको ज्ञात है वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन इंडिया. तो वहां पे क्या है आपका हर साल आपकी फ्लड आती है. तो इस वजह से जो है आपका जो है जो वेस्ट बंगाल है वहां पे आपका जूट इन जो क्रॉप्स है वो सबसे ज्यादा आपकी कल्टीवेट की जाती है. प्लस सबसे ज्यादा जो जूट इंडस्ट्री है वो भी आपकी वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है. वो क्यों है वी विल डिस्कस इन द चैप्टर 6. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. इसके जब आपका ग्रोथ का टाइम आता है तो इसके लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है. अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए और रेनफॉल इसको चाहिए आपकी 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर. अब आपकी जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं बेटा, वो आपकी जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो अलग अलग जो है आपकी जो है मेथड से जानी जाती है. जैसे कि मैंने शुगर केन का आपको बताया था. शुगर केन इज द रैटून क्रॉप. रैटून में क्या होता है, वी कट दिस स्टेम ब्रीड इन दी ग्राउंड. ऐसे ही आपका जो रबड़ है, रबड़ इज नोन एज दी लेटेक्स क्रॉप, क्योंकि एक मिल्की फ्लूइड उससे व्हाइट सब्सटेंस निकलता है आपका जिससे रबड़ आपकी प्रोड्यूस की जाती है. ऐसे ही जो आपकी जूट है इट इज ऑल्सो नोन एज दी रैटिंग क्रॉप, RETTING. इट इज ऑल्सो नोन एज द रैटिंग क्रॉप. क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे आपकी फसल तैयार होती है तो हम क्या करते हैं, इट नीड अ लॉट ऑफ स्टेगनेंट वाटर फॉर रैटिंग. यानी कि इसको जो है पानी के अंदर दबाया जाता है तो उसके लिए स्टेगनेंट वाटर जो है चाहिए होता है. और जो आपकी हुगली रिवर है वेस्ट बंगाल में, वहां पे जो है आपका तकरीबन 90 किलोमीटर का जो एरिया है वो जूट इंडस्ट्री के लिए ही आपका यूज किया जाता है. वहां पे इसको जो है दबा के रखा जाता है, उसके बाद उसका रॉ मटेरियल उससे उतार लिया जाता है. तो रैटिंग मेथड के द्वारा जो है इसको जो है आपका जो है ये पानी में दबाकर रखा जाता है. द मेथड ऑफ मेकिंग द प्लांट सॉफ्ट बाय सबमर्जिंग इट इन द वाटर, ताकि जो आपका ये जो रॉ मटेरियल है ये सॉफ्ट हो जाए. जूट कल्टीवेशन इज लेबर इंटेंसिव. ये भी आपकी लेबर इंटेंसिव है एज इट रिक्वायर मैनुअल वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग एंड
प्रोसेसिंग, दोनों में जो है आपकी मैनुअल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है, सुगर केन, रैटून क्रॉप, जूट, रैटिंग क्रॉप एंड रबर, latex crop, LATEX, latex crop. Areas of cultivation, main is the West Bengal, after that Bihar, Assam, Odisha, Meghalaya are the major जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। यानी कि आपने देखा होगा कि यही जो आपके ऐसे रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा आपकी रेनफॉल होती है और आपकी जो है फर्टाइल सोइल भी आपकी ज्यादातर यही पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है जूट की कल्टीवेशन की जाती है। So my dear student, these are the different geographical conditions to produce the different types of the crops. Next and most important concept, this is the fourth part of this chapter, technological and institutional reforms. That what are the different technological and institutional reforms in the matter of the agriculture. बड़े ध्यान से सुनना है बेटा अब आपने। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें से तकरीबन 80% आपकी बुक में नहीं मिलेंगी बेटा, तो बड़े ध्यान से आपने जो है इसको सुनना है। कॉजेस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया जो है इट इज द एग्रीकल्चर कंट्री, सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस टू इंट्रोड्यूस द डिफरेंट रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हम जो है बहुत पुराने समय से एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमको जो है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने पड़ गए, सुधार करने पड़ गए। तो उसके लिए क्या है बेटा, आपका डिफरेंट रीजंस हैं आपके। हैव ए लुक हियर। Agriculture has been in practice in India for thousands of years. Continued use of land without well-matched techno-institutional reform lead to slow down in pace of agriculture development. यानी कि हमको सुधार की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इसमें क्या हुआ बेटा आपका कि आपके जो है हमारे पास जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की पेस है, जो उसकी गति है, वो डाउन रही, हमेशा जो है धीमी रही। In spite of development in irrigation, most of the farmer in large part of country still depend upon monsoon and natural fertility of soil. हालांकि बहुत से इरिगेशन मेथड हमने जो है यूज किए हैं, बहुत से इरिगेशन मेथड हमने जो है स्टार्ट किए, और इन इरिगेशन मेथड को स्टार्ट करने के बावजूद भी ये देखने में आया कि हमारे जो किसान हैं, आज भी बहुत से जो किसान हैं वो मॉनसून और सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंड रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत बताया था। नेक्स्ट रीजन क्यों हुआ हमको सुधार करने की आवश्यकता, आवर पॉपुलेशन ग्रू एट फास्ट रेट देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करें। यानी कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, हमारी जो उपज है वो इतनी नहीं बढ़ रही जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। एंड यू आर वेल अवेयर दैट वी आर द सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इनजस्टिस डन विद फार्मर विद द करंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो है फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। किसके द्वारा? मिडलमैन, जो एजेंट लोग होते हैं या आड़ती जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने दामों पर जो है फसल को खरीद लेते हैं, या वो किसानों को पैसे दे देते हैं, उनको अपने कर्ज में दबा के रखते हैं, और उसके बाद जब फसल का वो आता है तो वो अपने रेट पर जो है फसल को खरीदते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपके जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है रिफॉर्म्स की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त फैमिन्स, ड्रॉट्स एंड अदर डिजास्टर रूइंड द एंटायर क्रॉप प्रोड्यूस, पुटिंग फार्मर इन डिलेमा। आपने देखा होगा इंडिया इज द लैंड ऑफ द ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी. Due to that, there are a number of natural disasters occur in India that put the farmer in the dilemma. So these are the different reason or different causes of the new reform in agriculture. This is the basic of this. But if we have a look according to current scenario, अगर हम current scenario के according देखें बेटा, तो आज भी जो है आपकी एग्रीकल्चर में बहुत से ज्यादा जो है आपको जो है रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। कैसे? द वेरी फर्स्ट इज डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग। अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी जो लैंड है
उसका जो साइज है वो धीरे धीरे आपका जो है घट रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने बात की थी राइट टू इनहेरिटेंस, कि हमको जो है अपने माता पिता से जो है जमीन मिलती है, जिसकी वजह से लैंड क्या है, इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉल पैचेस। सो लैंड होल्डिंग साइज बिकम अनइकोनॉमिकल एट दिस टाइम, सो इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट। इससे क्या होगा, हम जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ऑल्सो इरिगेशन बिकम डिफिकल्ट इन स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। दूसरा, इरिगेशन अगर हम करना चाहें तो आपके जब खेती टुकड़ों में डिवाइड हो गए तो वहां पे इरिगेशन में भी आपकी प्रॉब्लम होती है। दिस इज आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिचुएशन। सेकंड इज पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में जो है ट्रांसपोर्ट की जो स्ट्रक्चर है वो पुअर है आपकी, यानी कि ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। एंड पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, या किसान की जो प्रोडक्शन है, कई ऐसी फसल आपकी होती है जो पेरिसेबल होती है, बहुत जल्दी जो है आपकी जो है नष्ट हो जाती है, जैसे कि फ्रूट्स हैं आपके, वेजिटेबल्स हैं आपके। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जिन क्रॉप्स में आपका जो है मॉइस्चर जो है 14% से ऊपर होता है, वो क्रॉप्स आपकी जल्दी खराब हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास जो है शहरों तक, मार्केट तक पहुंचाने के लिए पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी अच्छी क्वालिटी में नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू स्टोर। हम जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू स्टोर दी डिफरेंट प्रोडक्शन। सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम रिमोट एरिया, और ये तो जो है जो दूर के जो स्थान है वहां पे तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है, या कम पॉसिबल होता है, ओइंग टू लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। क्यों होता है, क्योंकि ना तो वहां पे कोई कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है और ना ही वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। सो ड्यू टू दिस रीजन। थर्ड इज लैक ऑफ यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन ग्रोस वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि आज भी हमारे किसानों के पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो है जो प्रोडक्शन है उसमें जो है बहुत ज्यादा वेस्टेज जो आपकी आती है। इसी प्रकार से लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रिम्यूनरेटिव इनकम फॉर द फार्मर, यानी कि हमारे पास जो है या तो इरिगेशन फैसिलिटी है ही नहीं, या हम इतनी ज्यादा कर देते हैं कि आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि पंजाब का जो रीजन है वहां पे ओवर इरिगेशन की वजह से आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है, उसमें सैलिनिटी और एल्कलिनिटी का अमाउंट जो है वो आपका बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो आपका फार्मर की जो प्रोडक्शन होती है उसको जो फायदा होना होता है, जो रिम्यूनरेशन मिलना होता है, जो पैसा मिलना होता है, उसका जो है नुकसान होता है। एंड इनएडेक्वेट एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड लैक ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट, यानी कि हमारे किसानों के पास जो है मार्केटिंग सपोर्ट नहीं है ड्यू टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो किसान है छोटे किसान है और मार्जिनल या बहुत ही कम जमीन जिनके पास है वो किसान है, हु अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग, यानी कि तकरीबन जो है हाफ से भी ज्यादा जो है लैंड होल्डिंग जो है छोटे किसानों के पास है, मार्जिनल किसानों के पास है। आर अनेबल टू एक्सेस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट एंड आर लेफ्ट इन द स्फीयर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि वो जो है आपके जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी कि जो सरकार जो भी फायदे देती है और जो भी आपका जो है और भी जो अनसर्टेनिटी है उनसे वो जो है बच नहीं पाते, उनसे जो है वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, यानी कि अलग अलग जो समस्याएं हैं वो किसानों को आज के टाइम में जो है फेस करनी पड़ रही है। सो दीज आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। So due to these reason, we need the different types of the reforms. हमको जो है अलग अलग reforms की आवश्यकता होती है। So what are the different reforms that has been introduced? The very first टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो एकदम से आपके जो है टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अपनाए गए वो क्या क्या थे बेटा, आपके कलेक्टिव फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस। सबसे पहले जो आपकी कलेक्टिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई गई, यानी कि जो छोटे छोटे किसान हैं
जो मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा आपका, वो इकट्ठे मिलकर जो है आपके जो है खेती करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग, ताकि जो है वो सारे इकट्ठे मिलकर खेती करें तो उनका जो लैंड साइज है वो बड़ा हो जाएगा और वो जो है कुछ जो है उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो कलेक्टिव फार्मिंग जो है किसानों को जो है ये सजेशन जो है दी गई। दूसरा बेटा, लैंड होल्डिंग वर कंसोलिडेटेड, कि जो आपकी लैंड होल्डिंग है वो आपकी कंसोलिडेट की गई। एज यू आर अवेयर, India was the colony of the British period. So during the British period, the British people, they introduced the different types of the revenue system in India. You read in the 8th class about this. These are our Permanent Settlement Act or Permanent Settlement, Mahalwadi system and the Rayotwadi system. इनके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, if the farmer or the zamindar or other people, if they are unable to give the revenue to the farmer, the British people snatch the land of that farmer or zamindar and give it to the another. तो लैंड होल्डिंग जो थी वो कंसोलिडेटेड नहीं थी, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास नहीं थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है लोगों को जो है उनका मालिकाना हक दिया गया कि ये जमीन जो है एक पर्टिकुलर किसान से ही रिलेटेड है। तो लैंड होल्डिंग जो है वो कंसोलिडेट आपकी की गई। ऐसे ही कोऑपरेटिव मूवमेंट वर स्टार्टेड इन इंडियन एग्रीकल्चर, कि जो आपकी इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट आपके चलाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बनाई गई, जिसमें किसानों को जो है बहुत कम ब्याज पर, बहुत ही कम अमाउंट पर जो है पैसा दिया जाने लगा ताकि वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। जमींदारी सिस्टम वाज अबोलिश्ड, और जो जमींदारी सिस्टम था, जो परमानेंट आपका जो है सेटलमेंट एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पीपल ने इंट्रोड्यूस किया था 1763 में, उसको जो है आपका जो है खत्म किया गया। लैंड रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और लैंड को कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कैसे कैसे हम सुधार कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, उनको जो है पंचवर्षीय योजनाओं में इंक्लूड किया गया। ऐसे ही यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस, द ग्रीन रेवोल्यूशन and related technology were introduced such as use of HYV of seed, fertilizer, modern machinery and input. You are well aware about the green revolution. और green revolution के साथ एक और आपकी revolution introduce की गई थी, that is the white revolution. Oppressing flood were introduced to increase milk production, यानी कि किसान जो livestock रखते हैं, जो animals रखते हैं, उनमें जो है उनके लिए जो है व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई। उसको जो है दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, कि जो है कैसे जो है पशुओं का दूध जो है वो बढ़ाया जा सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नाउ we are going to discuss about the different technological and institutional reform that introduced in the present time. आज के टाइम में क्या इंट्रोड्यूस किया गया बेटा आपका, ध्यान से सुनना है आपने। फीचर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट, सबसे पहले जो है आपके अलग अलग स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। कौन कौन सी बेटा, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, establishment of Gramin banks, cooperative societies, banks for providing loan facilities to the farmer at lower rate of interest were some important step in this direction. यानी कि ये अलग अलग जो चीजें हैं वो जो है आपकी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई है। यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस किया गया है किसके अगेंस्ट, अगर आपका जो है ड्रॉट हो जाता है, फ्लड आ जाती है, साइक्लोन आ जाते हैं, फसलों में आग लग जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है किसानों को जो है दिया जाता है। ऐसे ही ग्रामीण बैंक आपके डेवलप किए गए ताकि लोगों को जो है, किसानों को जो है कम ब्याज पर पैसा मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी ग्रामीण बैंक का एक टाइप है, ये इसमें भी जो है आपका कम ब्याज पर जो है किसानों को पैसा जो है दिया जाता है। ऐसे ही लोन फैसिलिटी जो है लोअर रेट पर जो है वो दी। दूसरा है बेटा किसान क्रेडिट कार्ड, इसको हम ग्रीन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेब्लिश बैंक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका, आईसीआईसी बैंक है आपका, एचडीएफसी बैंक है, कोई भी जो आपका शेड्यूल बैंक है, वो क्या है किसानों को जो है कम रेट पर जो है ब्याज, कम ब्याज पर जो है, कम इंटरेस्ट रेट पर जो है पैसा देता है ताकि वो अपनी क्रॉप को ग्रो कर सके। उसके लिए जो है किसान का एक कार्ड बनता है जिसको केसीसी के नाम से या ग्रीन कार्ड के नाम से जानते हैं, ताकि जो है
लोग जो है मिडल मैन या जमींदार या आड़ती जो लोग हैं उनके संपर्क में ना आए, वो बैंक से सीधा लेन देन करें। ऐसे ही आपका एक और स्कीम आपकी इंट्रोड्यूस की गई है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको पेस के नाम से जानते हैं। यानी कि खेत में कार्य करते हुए किसान के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कुछ बेनिफिट दिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली ये आपका 50,000 के आसपास आपका होता है। यानी कि खेत में कार्य करते हुए अगर किसान के साथ कोई भी दुर्घटना हुई तो उसको जो है दुर्घटना के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो पैसा जो है मनी का प्रोविजन जो है वो किया गया है। Special weather bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on radio and television. ऐसे ही जो रेडियो और टेलीविजन है उस पे जो है वेदर बुलेटिन आपके आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स आपके आते हैं। जैसे कि रेडियो पे आपका शाम के टाइम जो है आपका कृषि के बारे में एक प्रोग्राम आता है, जिसमें जो है अलग अलग सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, कैसे उनका रख रखाव करना चाहिए, कैसे जो है उनमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही DD1 पे आपका जो है कृषि दर्शन एक आता प्रोग्राम आता है आपका शाम के टाइम, जिसमें जो है आपका जो है किसानों को जो है अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे ही आपकी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपकी इस्टेब्लिश की गई है। अलग अलग एग्रीकल्चर के बारे में आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट आपके इस्टेब्लिश किए गए हैं। जैसे कि अगर आप हिसार में देखें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी, जो किसानों को टाइम टू टाइम जो है व्हीट, राइस, कॉटन, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में जानकारी देती है। साथ ही साथ वेदर की इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, ताकि जो है आपको जो है अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान हो सके। ऐसे ही जो है आपकी गवर्नमेंट ने, अगर हम करनाल में देखें तो बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट आपके इस्टेब्लिश किए गए हैं। फॉर एग्जांपल NDRI का नाम आपने सुना होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपकी जो है व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है आपका, और वहां पे भी जो है पशुओं के बारे में अलग अलग जानकारी जो है किसानों को दी जाती है। ऐसे ही जब आप करनाल में विजिट करोगे तो वहां पे आपके डिफरेंट रिसर्च सेंटर है, जिसमें एक सेंटर आपका शुगर केन सेंटर, एक आपका सेंटर है व्हीट सेंटर, ऐसे ही एक आपका एनिमल हस्बेंड्री सेंटर है आपका, और एक सेंटर आपका बेटा सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI। तो इस प्रकार से डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ताकि किसान जो है इनसे फायदा उठा सके। The government also announces minimum spot price, remunerative and procurement prices important crops to check the exploitation of farmers by स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन। यानी कि गवर्नमेंट जो है आपका जो है MSP, मिनिमम स्पॉट प्राइस, यानी कि एक फसल का दाम जो है इतना तो रहेगा ही रहेगा, वो आपका पहले ही सेट कर देती है, पहले ही डिटरमाइन कर देती है, ताकि जो मिडलमैन है और जो ये स्पेकुलेटर्स हैं आपके एजेंट जो लोग हैं किसानों का शोषण ना कर सके। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में आपका जो है कौन सी चीजें जो आपकी इंट्रोड्यूस की गई है। करंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, करंट में आपके जो है कौन कौन से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो है वो आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। करंट में आपका किया गया है बेटा आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। ये किसके लिए किया गया बेटा? सीरियल क्रॉप, पल्सिस, ऑयल सीड, न्यूट्री रिच सीरियल, कॉमर्शियल क्रॉप। यानी कि जो सीरियल्स हैं आपके व्हीट, राइस, लाइक दिस, पल्सिस, ऑयल सीड, न्यूट्री रिच सीरियल, जैसे मैंने आपको मिलेट्स के बारे में बताया था, लाइक दे, और कॉमर्शियल क्रॉप, इन सब के बारे में जो आपका NFSM स्कीम जो है वो आपकी स्टार्ट की गई है। ऐसे ही आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH फॉर हाई ग्रोथ रेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल की क्रॉप्स को इंक्रीज करने के लिए आपका जो है MIDH स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस आपकी की गई है। ऐसे ही बेटा आपका नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, साउथ इंडिया में आपका जो है ऑयल सीड और ऑयल पाम एन मूव के नाम से आपका फेमस है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। यानी कि आपकी जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं और ऑयल पाम यानी कि ताड़ का जो तेल है
उसको जो है आपका जो है प्रमोट करने के लिए ये स्कीम आपकी इंट्रोड्यूस की गई है। ऐसे ही आपका एक और स्कीम बनाई गई है सॉइल हेल्थ कार्ड HSC। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करनाल में आपका एक इंस्टीट्यूट है CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पे जो है आपके ट्रिप एंड टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्टिकुलरली 10th क्लास के लिए। तो इसका मेन पर्पज क्या है? टू एंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, दस सेविंग द इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मर। यानी कि इसमें जो है सोइल की हेल्थ को, यानी कि सोइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट आपके प्रॉपर अमाउंट में है और किन किन चीजों की सोइल में न्यूट्रिएंट में कमी है, उनके बारे में जो है आपकी रिसर्च की जाती है, उनकी टेस्टिंग की जाती है और किसान को बताया जाता है कि वो किस अमाउंट में जो है आपके डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट है, यानी कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें। और करंट में आपका जो है NCU, नीम कोटेड यूरिया, आपका जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। नीम कोटेड यूरिया में क्या है? इट रेगुलेट यूज ऑफ यूरिया एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सरफ्लुअस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। यानी कि ये क्या करता है? यूरिया के रेगुलेट यूज को जो है डिसाइड करता है, साथ ही साथ जो सरप्लस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, यानी कि अगर आवश्यकता से ज्यादा है उसको जो है वो कम कर देता है, यानी कि उसका साइड इफेक्ट आपका नहीं आने देता है। इसका ये बेनिफिट होता है कि सोइल को जो है जितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जितने फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, वो उतना ही जो है उसमें यूज किया जाता है, सरप्लस को वो बाहर निकाल देता है। ऐसे ही बेटा आपके और भी बहुत से किए गए हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका PM किसान सम्मान निधि, to provide assistance to small and marginal farmer families with an amount of 6,000 per year। यानी कि किसान सम्मान निधि में क्या है कि जो छोटे किसान हैं या जिनके पास बहुत ही कम जमीन है, यानी कि छोटे किसान किसको? जिनके पास 4 एकड़ से कम जमीन है, और मार्जिनल जिसके पास 1 बीघा, 2 बीघा, आधा बीघा इतनी जमीन है, उनको जो है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है 6,000 रुपए जो है पर ईयर आपका देती है, जो हर 4 महीने के बाद जो है 2-2 हजार जो रुपए हैं वो उनके अकाउंट में आते हैं। ऐसे ही आपका बेटा एक स्कीम और इंट्रोड्यूस की गई है, PM किसान मान धन योजना, प्रोवाइड फॉर अ पेमेंट ऑफ ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। यानी कि जब एक किसान की एज जो है तो जब 60 साल हो जाती है तो उसको जो है पेंशन दी जाती है 3,000 रुपए पर मंथ। तो वो कब आपकी दी जाती है? इट इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। यानी कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको जो है इसके लिए एनरोल करना पड़ता है। ये एनरोल जो आप जो है 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कभी भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कुछ आपकी जो है योजनाएं हैं बेटा, जो आज के टाइम में आपकी इंट्रोड्यूस की गई है। ऐसे ही और भी बहुत सी योजनाएं हैं आपकी, वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर अबाउट दिस। आज के लिए इतना ही बेटा। My dear student, if you have any problem, any question in your mind, you can ask beta. We have just 4 minutes for it. Thank you beta. Have a nice day. God bless you. We will discuss the further information in the next chapter. This is the current information that I am providing to you. Please make it sure that you have to note down all these information. Thank you beta. Have a nice day. God bless you.